Today, in video number 10, we will see cities, Indian Constitution, law and answers. Okay, so let us move to book. Students, let us see today the long answers type questions. First question is saying, describe the essential features, essential characteristics of Indian Constitution. Here it may be features or characteristics. Both are same, so don't be confused. So let us see the answer. It is given. Answer is given here in the book in detail. So let us see. Here in the page number 206, there is a given essential features of the Constitution. So let us see first number, written and largest. So in this you will write from here. It is the largest in the world. It has 395 articles, 12 schedule and divided into 22 parts. Here it is only this. Okay. Then second, it is rigid, so also flexible. So here you will write a constitution is termed as a rigid or flexible on the basis of the procedure adopted for its amendment. Here it is only. Okay, in short. Then third you will write all. Okay, so original state means supreme, means those who decide their policy themselves. The country will decide its own foreign and domestic policy. Who will decide? Country means India. It is also it is not under any foreign rule, and it can have its own policies of behavior at the इंटरनेशनल लेवल. ओके, सो इंडिया अपनी पॉलिसी खुद डिसाइड करता है. वो किसी के प्रेशर में या किसी के अंडर में नहीं है. वो एक स्वतंत्र देश है. सी सोशलिस्ट एंड सेकुलर. सो आई हैव गिवन यू a short answer last whatever is the number. तो इसका आंसर हमने खुद ही दिया है. शॉर्ट आंसर जो है लास्ट वाला. ठीक. ओके, सो विल राइट. देन हियर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हियर यू विल राइट अंडर दिस सिस्टम द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट मीन्स निहित होता है. Vested in the Council of Ministers and the President is the titular head. The Council of Ministers follow the principle of combined responsibility. कहने का मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, जो रियल पावर होता है, किसके पावर होता है? पीएम के पास, प्रेसिडेंट. यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सिर्फ नाम के बस के होते हैं, हेड. बाकी उनके पास कोई रियल पावर नहीं होता है. पावर किसके पास होता है? पीएम के पास, प्राइम मिनिस्टर. ओके, तो यहाँ पे मेन पावरफुल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, ना कि प्रेसिडेंट. देन सी हियर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फेडरल फॉर्म मीन्स सी हियर द पावर ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ से आपको लिखना है द पावर ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट centralized at one place and are divided between the central and the state, and both have independence in their respective jurisdiction. यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास अपना अपना पावर होता है और दोनों अलग अलग हैं. एक होते हुए भी अलग अलग हैं और अलग अलग होते हुए भी एक हैं. ये एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं, और इंटरफेयर करना भी होगा तो किसके माध्यम से होता है? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से. ओके, इट इज कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सी हियर. देन हियर इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी. सो हियर यू विल राइट वन सेंटेंस. द जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट एज इट हैज पावर्स टू इंटरप्रेटेड the constitution to protect the fundamental rights of the citizens. इतना बस. ओके. Then next is fundamental rights and duties. So you know the fundamental. Here is given fundamental rights. So no need to write.
detail, you will mention only as I am saying. You will write this here. For all round development of citizens, fundamental rights are essential. There is a provision for 6 fundamental rights for the citizens. Okay, इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे the provision of fundamental duties of the citizens was added in the constitution by amendment 42. Okay, कब हुआ था? 1976 में. I have already explained you. Then directive principle of the state, 9 number, it is already I have given you. Okay, so you will write from that there in a very short, or you can say that you will write in short. Then here 10, universal adult franchise. The constitution has given the right to vote. Okay, so you will write from here, in the constitution this right is given to all the citizens who attain the age of 18 years, irrespective of their religion, race, caste, sex or place of birth. Here इतना बस, मीन्स आपको यहाँ से लिखना है in the constitution. Okay, then सिंगल सिटीजनशिप, तो हेडिंग लिखने के बाद ही ऑब्लिक शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन द कंट्री. 10 पर्सन लिविंग इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एक्सेट्रा और नॉट सिटीजन ऑफ दैट स्टेट बट ऑफ इंडिया. कितना आपको लिखना है इन दिस. इस तरह से आपका एक लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा. आपको पूरा का पूरा पॉइंट्स कवर करना है. ओके, नाउ सी, अब जो क्वेश्चंस आएंगे, व्हाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन एंड लार्जेस्ट, और डिस्क्राइब द फेडरल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज. तो ये सब आपको इसी एक आंसर में ही मिल जाएंगे. ओके, सो हियर यू विल, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू फर्स्ट आंसर को ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल आपको बाद में लिखना पड़ेगा. ओके, सी द सेकंड नंबर, व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन एंड लार्जेस्ट. सी द, सो हियर इसमें से आपको पूरा ये पूरा कवर करना है. सेकंड नंबर आपको यहाँ से पूरा ये सेकंड आंसर. ओके, अब ये थर्ड नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फेडरल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. जो भी हमने पॉइंट्स बताए हैं आपको, ओके, अंडर दिस सिस्टम, ये आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को जोड़ देना है. तो आपका बन जाएगा आंसर नंबर 3. फिर सुन लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक. सो इस तरह से आपका बन जाएगा आंसर नंबर 3. देन लास्ट इज सेइंग डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो याद करिए, पिछली क्लास में 9th क्लास में हमने पूरा इसको डिटेल लिखवाया था. राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये सारे इसको लिखना है. और डिटेल भी अगर आपको मिल जाता है 9th क्लास की कॉपी से सिविक्स में, तो उसको आप लिख लीजिएगा, आपके काम आएगा. 10th क्लास है, बोर्ड है, जितना आप नॉलेज कंटेन कर सकते हैं लिखिए. ओके, तो ये हेडिंग के बाद डिटेल 9th सन और 9th स्टार वाले आसानी से कर पाएंगे, और 9th मून वाले दोनों क्लास से संपर्क करके ले लेंगे कॉपीज. देन
फिर यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पे 10 दी हुई हैं, ओके 11 हैं। तो हियर इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज़ minimum 9 you have to write, okay, to avoid by constitution and respect the ideals and institutions, national anthem, national flag, etc. We should respect it, okay, to cherish and follow the noble ideals which inspire our national struggles for freedom. यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके कामों को, उनके जो इंस्पिरेशंस है, उसके आइडियल्स हैं, वो हमें फॉलो करना चाहिए, वो हमें जो कि हमें इंस्पायर करते हैं। फिर थर्ड नंबर, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये जानते हैं हमें इसको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। रेंडर मीन्स तैयार होना चाहिए, मीन्स देश जब भी आपको बुलाए आप देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू, जब भी देश सेवा के लिए बुलाया जाए आप तैयार रहें, ओके। इसमें से फिफ्थ नंबर में आपको वन सेंटेंस ओनली, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional diversities, ओके यहाँ तक इतना। फिर 6 नंबर, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। देन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, हमें अपना पर्यावरण साफ स्वच्छ रखना चाहिए, फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स एटसेट्रा। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इनइक्वालिटी, ओके। हमें हमेशा साइंटिफिक सोच, मानवतावादी सोच लेके चलना चाहिए। देन 9 नंबर, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडजर्न वायलेंस, हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित करना चाहिए और जो आपका वायलेंस है उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। सो दीज आर अवर फंडामेंटल ड्यूटीज, सो यू विल राइट इट, ओके। इन दिस वे दिस लेसन completed and let us move to board. After civics completing, we will start economics, and there is a economic development and planning, that is 15th chapter, money and financial system, that is 17th chapter. So we will start in next video. So today means in this you read this chapter, 15th chapter, economic development and planning. So I hope you will complete the copy of civics and you will also read economics. So we will meet for this chapter in the next video.